Hello class. Today we will start a new chapter that is the crisis of democratic order. Crisis बेटा क्या होती है? First of all you have to know about the crisis. Crisis होती है आपकी बाधाएं, ठीक है, कि कौन कौन सी, जैसे as you know that after the 1947, in 1947 India got independent, and after getting the independent, the India announced that India is a democratic government. India is a democratic country. ठीक है, तो जो आपका बाकी कंट्रीज थी, the another countries was thinking that democracy is not possible in India because India is very large country. The successful of democracy is not possible in India. Okay, but India adopted the democratic form of the government and proved successful. ओके बेटा, तो आपका ये चैप्टर है कि जो डेमोक्रेटिक ऑर्डर चल रहा था उसमें क्या क्या बाधाएं रही. आपके जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनका चैप्टर है लोकतांत्रिक शासन में बाधाएं या लोकतांत्रिक शासन की चुनौतियां. तो क्राइसिस क्या है? चैलेंजेस है. चैलेंजिंग इन द डेमोक्रेटिक ऑर्डर. जो इंडिया में डेमोक्रेसी थी, इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए क्या क्या चैलेंज था वो. ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. बैकग्राउंड टू इमरजेंसी. We have already studied the changes that were taking place in the Indian politics since 1967. Indira Gandhi had emerged as a towering leader with tremendous popularity. This was also the period when party competition became bitter and polarized. अब बेटा क्या है, 1967 की यहाँ पे बात हो रही है. इट मीन्स जब आपके पंडित लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो चुकी थी और इंदिरा गांधी एक फेमस लीडर के रूप में सबके सामने आई थी. ठीक है बेटा, इट वॉज also the period when party competition became bitter and polarized. This period also witnessed tension in the relationship between the government and the judiciary. अब बेटा ये जो आपका टाइम पीरियड है in the 1967, it is the witness, ये किस चीज़ का गवाह है, that the firstly ये conflict arise between the judiciary and the लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में फर्स्ट टाइम क्या हुआ था बेटा, कन्फ्लिक्ट अराइज हो गए थे. किस चीज़ को लेकर हो गए थे वो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में रीड आउट करेंगे. ओके, द कांग्रेस पार्टी took the position that his stand of the court was against principle of democracy and parliamentary supremacy. The Congress also allied that the court was a conservative institution and it was becoming an obstacle in the way of implementing poor welfare programs. The parties opposed to the Congress felt that politics was becoming too personalized and the government authority was being converted into personal authority. The split in the Congress has sharpened the division between Indira Gandhi and her opponents. अब बेटा सिचुएशन क्या थी, that after the death of the Pandit Jawaharlal Nehru and after that Lal Bahadur Shastri became the president beta of Congress party. It means he became the second prime minister of the India after the Nehru, but he became the president of the Congress. ठीक है, लेकिन जब उनकी डेथ हो गई आफ्टर द ताशकंद एग्रीमेंट, द इंदिरा गांधी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, है ना. तो उसने उसकी जगह ले ली और बहुत सारे जो फेमस लीडर थे, मैनी फेमस लीडर वर अगेंस्ट टू द इंदिरा गांधी. ओके, रीज़न क्या था, क्योंकि बेटा वो खुद से कांग्रेस के फेमस लीडर थे. कांग्रेस को उन्होंने इतने ईयर्स खुद क्या किए, कंट्रीब्यूट किए अपनी लाइफ के. तो वो क्या चाहते थे कि ये जो कांग्रेस की लीडरशिप है वो उनके पास आनी चाहिए. ठीक है,
तो उस टाइम बहुत सारे जो फेमस लीडर थे वो एज ए इंदिरा गांधी के अपोजिशन में जाके खड़े हो गए और कांग्रेस में क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, कांग्रेस का विभाजन हो गया. बिफोर द 1967 द कांग्रेस was a good party, but after the 1967 the Congress became the arenas, ठीक है, of many famous persons. बेटा क्योंकि उसमें 1967 से पहले तो क्या था, फेमस पर्सनैलिटी थी, जैसे आपके नेहरू हो गए, शास्त्री जी हो गए, है ना बेटा, वो सारे क्या थे, फेमस फेस थे. तो सब उनको अच्छे से इजीली मतलब उनके बातों को मानते थे, फॉलो करते थे. लेकिन जैसे ही इंदिरा गांधी क्या आई आपकी बेटा राजनीति में आई, तो बहुत सारे लोग उनके अगेंस्ट हो गए, और जो वो एक ग्रुप था वो क्या हो गया, उसमें डिवीज़न हो गया. एक तरफ आपके सिंडिकेट चले गए और एक तरफ दूसरे जो आपके कांग्रेस को मतलब जो इंदिरा गांधी को फॉलो करने वाले लोग थे. गॉट इट बेटा. इकोनॉमिक कंटेक्स्ट, कि इकोनॉमिक से रिलेटेड ऐसा क्या हुआ कि जो हमें लगा या बाकी वर्ल्ड को लगा कि इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो क्या होने वाली है, फेल होने वाली है. ठीक है. फर्स्ट हमारे लिए चैलेंज क्या था, फर्स्ट इकोनॉमिक चैलेंज क्या था डेमोक्रेसी के लिए, दैट इन द इलेक्शन ऑफ द 1971 कांग्रेस हैड गिवन द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी. अंडरलाइन दीज वर्ड्स बेटा. It was a very famous slogan. On the behalf of that slogan, the Indira Gandhi won the 1967 election. जो बेटा आपका क्या है, जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने 1971 के इलेक्शन में एक फेमस स्लोगन क्या किया था, 1971 के इलेक्शन में, गरीबी हटाओ, दैट इफ़ वी विल कम इन द गवर्नमेंट वी विल रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम द इंडिया. ठीक है. इस बिहाफ पे उन्होंने लोगों से क्या किया, वोट कलेक्ट किए, और वोट कलेक्ट करने के बाद वोट कलेक्ट करने के बाद मतलब वो सत्ता में आ गई, गवर्नमेंट पे आ गई. ठीक है. However, the social and economic condition in that country did not improve much after 1971 to 72. इसके बावजूद भी, एक मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट आने के बावजूद भी, इंडिया में जो गवर्नमेंट थी बेटा वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही थी, वो सिस्टम मेंटेन नहीं हो पा रहा था. ठीक है. द बांग्लादेश क्राइसिस हैड पुट ए हैवी स्ट्रेन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. मतलब जो आपका बांग्लादेश को लेकर पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, क्राइसिस हुए, उसने भी इंडिया को बहुत लॉस किया, क्योंकि उससे जब उसने उसके ऊपर अटैक किया, उसकी सोवर्जिनिटी में इंटरफेयर किया, तो उसको इंटरनेशनल लेवल पे क्या माना गया, गलत चीज़ मांगी गई. ठीक है. About 8 million people crossed over the East Pakistan border into India. This was followed by war with Pakistan. जब बेटा अभी क्या हुआ, वो पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक क्यों करेगा, उसका एक रीज़न था बेटा कि 1971 में जब क्या हुआ, इसने आपकी सरकार ने या कांग्रेस ने बांग्लादेश को अलग कराने के लिए, जो वहाँ का क्या था, पूर्वी पाकिस्तान था, उसको पाकिस्तान से सेपरेट कराने के लिए, रिमूव कराने के लिए बहुत सारे एफ़र्ट्स किए थे, है ना, बहुत सारे एफ़र्ट्स किए थे ना. तो उसकी ही वजह से क्या हुआ था, मतलब इकोनॉमिक बेटा, अब किसी दूसरी कंट्री को हेल्प करेगी तो ऑब्वियस सी बात है हमारी इकोनॉमी डाउन जाएगी ना. तो सेम थिंग यहाँ पे हुआ कि इंडिया की इकोनॉमी क्या हो गई, डाउन चली गई. अबाउट 8 million people crossed over the East Pakistan border into India. Across कितने people बेटा, how many people cross the border? Approx lakh and crore peoples. Got it बेटा. तो इससे क्या हुआ, पाकिस्तान के साथ हमारे जो क्या थे रिलेशंस थे वो ख़राब होते चले गए. आफ्टर द वॉर द US गवर्नमेंट स्टॉप्ड ऑल एड टू इंडिया. मतलब जब क्या हुआ कि इंडिया ने पाकिस्तान को क्या किया,
स्टेपल करके रख लिया। किस चीज़ का स्टेपल करके रखना, मतलब कंट्रोल करके रखना। आपके बेटा अभी 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 आपने बेटा क्या रीड आउट किया कि क्या होता है कि जैसे ही हम फॉरेन अगर किसी कंट्री के ऊपर अटैक करते हैं, किसी की सोवर्निटी में इंटरफेयर करते हैं, जो एट प्रेजेंट की मॉडर्न पॉलिटिक्स होती है, उसमें अदर कंट्री हमारे साथ क्या कर सकते हैं, रिलेशन ब्रेक कर सकते हैं। सेम सिचुएशन कब हुई, इन द 1972, इन दैन आफ्टर द वॉर विद द पाकिस्तान इन 1971, द USA ब्रेक द रिलेशन, इकोनॉमिक रिलेशन विद इंडिया, है ना। उन्होंने क्या किया, US की गवर्नमेंट ने हमारे साथ जो इकोनॉमिक बिजनेस था उसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ओके, इन द इंटरनेशनल मार्केट ऑयल प्राइसेस इंक्रीज मैनीफोल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, दिस led to an all around increase in price of commodities. Prices increased by 23% in 1973 and 30% in 1974. Such a high level of inflation caused much hardship to the people. अब ये क्या कहता है बेटा कि आपकी जो क्या है प्राइस की कंडीशन इंक्रीज हुई। कैसे इंक्रीज हुई, पीपल के, यहाँ पे जो इंडिया के पीपल थे उन्होंने हार्ड वर्क किया। किसके ऊपर फोकस किया बेटा, आपकी एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया, जिससे क्या हुआ, उनका मतलब एक अच्छा कलेक्शन होता था। ठीक है, एक अच्छा कलेक्शन होने के बाद सॉरी एक अच्छा कलेक्शन होने के बाद मतलब वो अपना गुजारा कर सकते थे। गोट इट। द प्राइस इंक्रीज बाई 23% इन 1973 एंड 30% इन 1974। मतलब जो प्राइसेस इंक्रीज हो गई बेटा, प्राइस इंक्रीज कब होते हैं, मतलब प्राइसिंग कोई गुड होती है, रॉ मटेरियल होता है, उसको हम गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो उसका लेबर का, उसके इंग्रेडिएंट का सारा खर्चा हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट के उसको ऐड करके तब सेल करते हैं ना। सेम थिंग यहाँ पे भी क्या हुआ बेटा, यहाँ पे आपके प्राइस क्या हो गए, हाई हो गए। ठीक है, सच ए हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन कॉज्ड मच हार्डशिप टू द पीपल. Industrial growth was slow and unemployment was very high. Particularly, the government froze the salaries of its employees. अब बेटा क्या हुआ कि कंडीशन बहुत ज़्यादा डाउन चलेगी, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा डाउन चलेगी, क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। ठीक है, और दिस कॉज फर्दर डिससेटिस्फेक्शन अमंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़. मॉनसून फेल्ड इन 1972 एंड 1973. बेटा उस टाइम पे एज यू नो दैट आवर कंट्री वॉज डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर, है ना, एंड इन एग्रीकल्चर में क्या होता है बेटा, प्रॉफिट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, उस टाइम पे सभी को पता था कि इंडिया में सारा प्रॉफिट किसके ऊपर डिपेंड है, मॉनसून के ऊपर डिपेंड है। तो उस टाइम पे मॉनसून भी नहीं आई, जिससे आपकी क्रॉप थी वो इतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं दे पाई। ठीक है, दिस रिजल्टेड इन ए शार्प डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. इस चीज़ ने बहुत अच्छे से क्या जो ये आप क्या करते हो बेटा, जो छोटे छोटे प्लांट्स लगाते थे हो ना, है ना, तो उन सब चीज़ों को छोड़ के अब यहाँ पे क्या किया गया, मतलब फोकस किया गया मॉनसून के ऊपर। ठीक है, मॉनसून के ऊपर फोकस क्यों किया गया, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया के पास कोई इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी। एट दैट टाइम द इंडिया वॉज नॉट हैविंग द एनी टाइप ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, है ना। तो उसने क्या किया, मतलब प्राइस इंक्रीज हो गए। क्यों इंक्रीज हो गए, क्योंकि उनमें इन्वेस्ट ज़्यादा करना पड़ा होगा। ठीक है बेटा, तो उस टाइम पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा क्या हुआ, पाकिस्तान के साथ हमारा वॉर हो गया। वॉर हुआ तो मतलब हमें अपना पैसा लगाना पड़ा कहाँ पे, पाकिस्तान इशू पे। सेकंड थिंग क्या हुआ, उस टाइम पे मॉनसून भी क्या हो गया, फेल हो गया, है ना बेटा। मॉनसून फेल होने से पहले ही आपकी इकोनॉमिक कंडीशन डाउन थी, आपने और ज़्यादा डाउन कंडीशन, मतलब अब इकोनॉमिक कंडीशन और भी ज़्यादा डाउन हो चुकी थी इंडिया की। सच ए हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन कॉज्ड मच हार्डशिप टू द पीपल.
Industrial growth in the rural area in order to reduce expectation by the government froze the salaries of its employees. The cause further dissatisfaction among government employees. Monsoon failed in 1972-73. This resulted in a sharp decline in agriculture productivity. तो बेटा फर्स्ट फोकस जो किया गया था, द फर्स्ट फोकस वाज ऑन द एग्रीकल्चर एंड फूड ग्रेन आउटपुट डिक्लाइंड बाय 8%. जो आपका क्या है फूड ग्रेन्स, सिर्फ आपका फूड ग्रेन्स में बेटा जो आपका वीट होता है वो राइस होता है. जब क्या हुआ आपके एग्रीकल्चर कम होगी तो ऑब्वियसली उनकी डिमांड ज़्यादा होगी, लेकिन एट दैट टाइम द वेल्थ वाज नॉट इन हाई क्वांटिटी, है ना, क्योंकि हमारा ऑलरेडी एक वॉर हो चुका है, हमारा मॉनसून फेल हो चुका है, तो हमारी कंडीशन बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है. तो एट दैट टाइम the many countries were thinking that democracy will be abolished from the India, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. तो फर्स्ट क्राइस क्या आया, फर्स्ट चुनौती क्या आई, बाधा क्या आई हमारे पास, दैट इज इकोनॉमिक क्राइसिस इन द डेमोक्रेटिक ऑर्डर. क्लियर हो गया बेटा. अब ये क्या है सिचुएशन, there was a general atmosphere of dissatisfaction with the prevailing economic situation all over the country. In such a context, non-Congress opposition parties were able to organize popular protest effectively. Intense of students' interest that had persisted from the late 90s become more pronounced in this period. अब ये बेटा क्या हुआ कि जैसे नॉर्मली होता है, क्या होता है कि कांग्रेस के अपोजिशन पार्टी वाले थे वो क्या कर रहे थे, वो उसका अपोज कर रहे थे. क्यों कर रहे थे, क्योंकि कांग्रेस के टाइम पीरियड में क्या हुआ था, हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन चली गई थी. ठीक है. देयर वाज ऑल्सो एन इंक्रीज in the activities of Marxist group who did not believe in parliamentary politics. अब बेटा ये क्या कहता है, that he is saying to you that you have to increase the strength of your type of people, है ना. तो ये क्या कहता है, there was also an increase in the activities of Marxist group who did not believe in the parliamentary politics. These groups had taken to arms and instrument techniques for the overthrow of the capitalist order, and group or state government took stringent measure to suppress him. अब बेटा क्या हुआ, आपका ये यहाँ से देखो तो उस टाइम पे जब क्या हुआ, दूसरे एक्टिविटीज़ के ऊपर इंडिया ने फोकस करना कम कर